Welcome students. Today we are going to start with the chapter Force and Laws of Motion, that is the second chapter of physics of class 9. In the previous chapter, as we know the motion, we got to know when do we say an object is in motion. We described motion, we described the type of motion and the equations of motion, and certain terms related to motion like speed, velocity, distance and displacement. So basically in the previous chapter we got to know about what motion is, but in that chapter we didn't went to know what causes motion. So in this chapter, Force and Laws of Motion, we will see that what causes motion, why does the speed of an object change with time, do all motions require a cause. All these questions we will look for all these questions in this chapter, Force and Laws of Motion. देखिए, बहुत सारे सालों तक और कई सारे सालों तक आपका साइंटिस्ट जो है ये सोचते रहे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट कैसे मूव करता है, क्या कारण है उसके मूव करने का. अगर कोई ऑब्जेक्ट नेचुरली रेस्ट पे आपका रिसाइड कर रहा है तो वो क्यों मूव नहीं करता. इस सभी साइंटिस्ट ये जो हैं वो आपका इस बात को ढूंढते रहे कि क्यों कोई ऑब्जेक्ट जो है वो आपका मूव करता है, कैसे मूव करता है. अगर हम भी ऑब्जर्व करें इन एवरीडे लाइफ, अगर कोई भी चीज आपका रखी हुई है एट रेस्ट, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, और अगर हम चाहें कि उसको मोशन में लाना है तो उसको मोशन में लाने के लिए हमें उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाना पड़ता है. तो जब हम फोर्स लगाते हैं तो फोर्स लगाने पर वो ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी स्टेट जो है वो आपका चेंज करता है. स्टेट से मेरा मतलब है स्टेट ऑफ रेस्ट. पहले वो रेस्ट पे था. जब हम फोर्स लगाते हैं तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपका अपनी स्टेट जो है वो आपका चेंज करता है. तो ये जो आपका फोर्स हम लगाते हैं ये आपका जनरली इट इज अ पुश और अ पुल. बेसिकली द फोर्स दैट वी अप्लाई टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नथिंग बट अ पुश और अ पुल acting on an object. So if you got to define what force is, in simple words we can define force as a push or a pull acting on the object, and force is the cause of motion. तो किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए जो रीजन है, जो कॉज है, वो है आपका फोर्स. तो इन सिंपल लैंग्वेज वी डिफाइन फोर्स एज अ पुश और अ पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. अगर हम इसको और बेटर तरीके से डिफाइन करना चाहें तो फोर्स इज दैट कॉज विच causes a change in the state of rest or state of motion of an object. अगर हम और बेटर डेफिनेशन फोर्स की देना चाहें तो फोर्स वो रीजन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज लाता. अब फोर्स के बारे में हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है. अगर हम फोर्स देखें तो हमने क्लास 8 में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है, कि आपका बेसिकली इट इज अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट. एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स की अगर हम बात करें कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे आपका फोर्स लगता है तो आपका क्या क्या इफेक्ट जो है हम फोर्स के महसूस कर सकते हैं. द वेरी फर्स्ट इफेक्ट, इट कॉजेज a change in state of rest or motion of an object. Second, it causes a change
in the speed of an object. It can cause a change in the direction of an object. आपका डायरेक्शन भी चेंज कर सकता है. एंड लास्टली it can change shape and size of an object. It can also cause a change in the shape and size of an object. These are the effects of force, as you have read them in the previous classes as well. It can bring an object in motion if it is at rest, or if an object is in motion, it can bring the object at rest. The force acting on an object can cause a change in the speed of an object. The speed can increase and decrease when we apply force on the object. It can cause a change in the direction of an object, and it can cause a change in the shape and size of the object. These are the basically effects of force that are generally experienced by us. So the cause of motion, so we got to know from this that the cause of motion of an object is the force acting on the object. The cause of motion is the force acting on an object. Now we'll learn about balanced and unbalanced forces. What are balanced and unbalanced forces? To understand the concept of balanced and unbalanced forces, we'll simply consider a block lying on a tabletop. Consider this to be a block lying on the top of a table, and two strings are attached to the block, X and Y. Now अब इस ब्लॉक को आपका X और Y की डायरेक्शन से आपका पुल किया जा रहा है. इधर से भी पुल किया जा रहा है और Y की तरफ से भी पुल किया जा रहा है. X और Y की तरफ से दोनों डायरेक्शन से आपका इस ब्लॉक को आपका अपनी तरफ पुल किया जा रहा है. और अगर दोनों सेम फोर्सेस लगाए जाएं, X और Y अगर सेम फोर्स से अगर दोनों अपने अपनी तरफ इसको पुल करेंगे, जो ब्लॉक है वो आपका मूव नहीं करता. अगर X और Y डायरेक्शंस में जो फोर्सेस लग रहे हैं वो दोनों फोर्सेस लगने पर अगर ये ब्लॉक मूव नहीं करता, तो ये जो ब्लॉक है, तो ये जो इस ब्लॉक पे लगने वाले जो दो फोर्सेस हैं उनको हम बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे. तो बैलेंस फोर्सेस are the forces which do not cause any change in the state of rest or motion of an object. तो फोर्सेस, बैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं करते. ऐसे फोर्सेस को हम बैलेंस फोर्सेस कहते हैं. नाउ वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अब ये जो ब्लॉक हमने लिया था, अगर इस ब्लॉक पे आपका जो फोर्सेस लग रहे हैं X और Y, ये जो दो फोर्सेस लग रहे हैं, सपोज हम मान लेते हैं कि आपका X की तरफ जो फोर्स लग रहा है
आपका फोर्स जो है वो ब्लॉक को आपका राइट डायरेक्शन में मूव करवाता है। तो ऐसे जो फोर्स, ये जो दो फोर्सेस होंगे आपका, वो अनबैलेंस फोर्सेस कहलाएंगे। तो अनबैलेंस फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जिनके लगने पर ऑब्जेक्ट की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन में आपका कोई चेंज आता है। जैसे यहाँ पर आपका जब अनबैलेंस फोर्सेस इस ब्लॉक के ऊपर लगेंगे तो ये ब्लॉक जो है वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट से बाहर आएगा, और जिस डायरेक्शन में आपका ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा, इससे हम मानते हैं कि एक्स जो है वो ज्यादा मैग्नीट्यूड का फोर्स लगा रहा है या अपनी तरफ ज्यादा फोर्सेस को पुल कर रहा है, तो ये जो ब्लॉक है वो आपका उस तरफ मूव करेगा। तो अनबैलेंस फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होंगे। thus unbalanced forces are the forces which cause a change in the state of rest or motion of an object। तो अनबैलेंस फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, या अगर वो ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको रेस्ट पे लाने के लिए आपका अनबैलेंस फोर्सेस जो होते हैं वो आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टू क्लियर द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, एन एग्जाम्पल हैज बीन गिवन इन दी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल दे रखा है बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस को क्लियर करने के लिए। ऑन योर पेज नंबर 115, in that example, two children are trying to push a box lying on the floor। दो बच्चे जो हैं वो आपका एक बॉक्स को पुश करने की कोशिश कर रहे हैं जो कि सरफेस पे रखा हुआ है। इनिशियली वो उस बॉक्स को पुश करते हैं तो बॉक्स जो है वो आपका मूव नहीं करता। बॉक्स इसीलिए आपका मूव नहीं करता क्योंकि बॉक्स जो है उसको आपका बॉक्स पे लगने वाले फोर्सेस, बॉक्स पे जो फोर्स आपका चिल्ड्रन लगा रहे हैं उन फोर्सेस, उन फोर्स को आपका जो फ्रिक्शनल फोर्स है जो आपका बॉक्स पे लग रहा है, बॉक्स और सरफेस के बीच में, वो आपका बैलेंस कर रहा है। जब तक वो फ्रिक्शनल फोर्स आपका बच्चे जो फोर्स लगा रहे हैं वो बैलेंस करता रहेगा, तब तक आपका बॉक्स जो है वो मूव नहीं करता। बच्चे और हार्डर पुश करते हैं तभी बॉक्स नहीं मूव करता, क्योंकि तब भी आपका बॉक्स जो है, बॉक्स पे लगने वाले जो फोर्स है उसको फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो आपका बैलेंस कर रहा है। लास्टली जब दोनों बच्चे आपका फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगाते हैं, यानी एक अनबैलेंस फोर्स आपका बॉक्स के ऊपर लगता है, तो बॉक्स जो है वो आपका मूव करना शुरू करता है या अपनी स्टेट जो है उसको चेंज करता है। तो वो एग्जाम्पल जो आपका एनसीईआरटी में दिया है जिसमें बच्चे जो है इस बॉक्स को पुश कर रहे हैं, वो एग्जाम्पल ये बात को क्लियर करता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए या आपको उस पर अनबैलेंस फोर्सेस लगाने की जरूरत होती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ आपके बुक में एनसीईआरटी में दिया है ऑन पेज नंबर 115। जब हम बाइसिकल चलाते हैं, अगर हम बाइसिकल में पेडलिंग करना बंद कर दें तो बाइसिकल जो है वो धीरे धीरे आपको स्लो डाउन होने लगती है, धीरे धीरे रेस्ट पे आने लगती है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे हम बाइसिकल पे पेडल करना बंद करते हैं, जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो आपका डोमिनेट करते हैं और धीरे धीरे आपका फ्रिक्शनल फोर्सेस डोमिनेट करते हैं और आपका बाइसिकल जो है वो आपका रेस्ट पे आने लगती है। इसका मतलब कि अगर बाइसिकल को मूव करते रहना है तो बाइसिकल को मूव करते रहने के लिए हमको उसमें पेडलिंग करते रहना पड़ेगा। यानी बाइसिकल तभी तक आपका मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक अनबैलेंस फोर्स लगता रहेगा। लेकिन ये बात भी देखिए कितनी सही है। अगर किसी ऑब्जेक्ट को आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे रखना है तो उस पे जो फोर्सेस लगने चाहिए वो भी आपका बैलेंस फोर्सेस लगने चाहिए। यानी जब तक किसी ऑब्जेक्ट पे आपका बैलेंस फोर्सेस लगेंगे तभी तक आपका ऑब्जेक्ट जो है वो आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म स्पीड से या यूनिफॉर्म मोशन आप कह सकें सिंपली, तब तक वो आपका यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। जैसे ही ऑब्जेक्ट पे आपका अनबैलेंस फोर्सेस लगते हैं, अनबैलेंस फोर्सेस लगने पर ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहता। अनबैलेंस फोर्सेस लगने पर ऑब्जेक्ट की स्पीड या ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन जो है वो आपका चेंज होती है। और जब भी आपका ऑब्जेक्ट की स्पीड या डायरेक्शन चेंज होगी तो ऑब्जेक्ट जो है वो आपको यूनिफॉर्म मोशन में नहीं रहेगा, बिकॉज दैट कॉजेस अ चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। वी नो वेलोसिटी चेंजेस विद डायरेक्शन और चेंज इन द मैग्नीट्यूड। तो जैसे आपका बैलेंस फोर्सेस जैसे आपका अनबैलेंस फोर्सेस लगेंगे, तो अनबैलेंस फोर्सेस लगने पर ऑब्जेक्ट जो है
उसकी वेलोसिटी आपका चेंज हो गई एंड द ऑब्जेक्ट विल नो लॉन्गर रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन। और ऑब्जेक्ट की स्पीड में ये चेंज तभी तक रहेगा जब तक उस पर आपको ये अनबैलेंस फोर्सेस लगेंगे। जैसे ही अनबैलेंस फोर्सेस हट जाएंगे, ऑब्जेक्ट जो है वो आपका उस वेलोसिटी से या उस स्पीड से मूव करता रहेगा जिससे वो मूव कर रहा था अनबैलेंस फोर्सेस रुकने से पहले। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विच इज योर फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझने से पहले हमको आपका एक गैलीलियो का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट को अगर हम समझ लें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को समझना बहुत आसान हो जाता है। गैलीलियो का देखिए एक्सपेरिमेंट क्या कहता है। गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने दो इंक्लाइंड स्लोप लिए और वो जो इंक्लाइंड स्लोप थे उनका इंक्लिनेशन आपका सेम था। गैलीलियो टुक टू इंक्लाइंड स्लोप which were inclined at the same which had same inclination. गैलीलियो ने आपका आइडियल कंडीशंस चूज करी। उसने कहा कि ये जो आपका सरफेसेस हैं, जो इंक्लाइंड सरफेसेस हैं, ये आपका फ्रिक्शनलेस है, इन पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, दैट इज दे आर परफेक्टली स्मूथ। तो गैलीलियो ने कहा अगर हम ये कंसिडर करें कि ये जो दो सरफेस हम ले रहे हैं जिनका इंक्लिनेशन सेम है और परफेक्टली स्मूथ है, अगर हम एक मार्बल ले रहे हैं, उस मार्बल को अगर हम यहाँ से आपका रोल डाउन कराएं तो मार्बल जो है वो आपका रोल डाउन होगा। जिस हाइट से हम मार्बल को रोल डाउन करा रहे हैं, मार्बल रोल डाउन होगा और रोल डाउन होने पर मार्बल जो है वो दूसरे सरफेस पे जाएगा और वो वही हाइट अटेन करेगा जिस हाइट से उसको यहाँ से रिलीज किया गया था। जिस हाइट से मार्बल को इस सरफेस से रिलीज किया गया था, रोल डाउन होने पर आपका मार्बल जो है वो दूसरे सरफेस पे भी जिसका इंक्लिनेशन सेम है वो उसी हाइट पर आपका जाकर रुकेगा अगर ये सरफेस आपका परफेक्टली स्मूथ है। ऑल्दो कोई भी सरफेस आपका परफेक्टली स्मूथ नहीं होता, देयर विल डेफिनेटली बी सम फ्रिक्शन। तो जो मार्बल है वो आपका वही हाइट तो अचीव नहीं करेगा इन द एक्चुअल कंडीशन, बट दिस इज द आइडियल कंडीशन दैट वी आर कंसिडरिंग। अब गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने आपका ये वाला जो इंक्लिनेशन है इस सरफेस को तो उतना ही रखा, दूसरे सरफेस का जो इंक्लिनेशन है वो आपका कम कर दिया, लेकिन हाइट आपकी सेम रखी। जो हाइट है आपका वो उतनी ही रखी, लेकिन इंक्लिनेशन जो है वो थोड़ा आपका एंगल जो है वो आपको रिड्यूस कर दिया। फिर से उसने उसी हाइट से आपका मार्बल को रिलीज करा और मार्बल को जब उसने रिलीज किया तो उसने देखा मार्बल जो है वो आपका फिर से दूसरे सरफेस पे भी आपका जा रहा है और वो वही हाइट अटेन कर रहा है वापस से जिस हाइट से उसको रिलीज किया गया था। ऑल्दो मार्बल को थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा कवर करना है उस हाइट तक पहुंचने के लिए, लेकिन मार्बल जो है वो आपका उस हाइट तक वही हाइट आपका अचीव करने की कोशिश कर रहा है जिस हाइट से उसको रिलीज किया गया था फ्रॉम द प्रीवियस स्लोप, ऑल्दो इट हैज टू कवर अ लॉन्गर डिस्टेंस। गैलीलियो ने कहा कि फर्दर हम सरफेस को और उसका इंक्लिनेशन जो कम कर देते हैं, द हाइट रिमेनिंग द सेम। उसने फिर से मार्बल को यहाँ से रिलीज किया। मार्बल को जब उसने रिलीज किया तो मार्बल जो है वो आपका दूसरे सरफेस तक भी आपका उस सरफेस पर भी उसी हाइट तक पहुंचा और आपका वही हाइट उसने अचीव करने की कोशिश की। तो ऐसे करते करते उसने कहा कि अगर हम सरफेस को बिल्कुल प्लेन कर दें, अगर उसका इंक्लिनेशन बिल्कुल खत्म कर दें और हम मार्बल को यहाँ से रिलीज करते हैं, तो मार्बल को अगर हम यहाँ से रिलीज करेंगे तो मार्बल जो है वो आपका रिलीज करने पर मार्बल आपका उस परफेक्टली स्मूथ सरफेस पे आपका रोल डाउन होता रहेगा, आगे चलता रहेगा जब तक मार्बल वही हाइट अचीव ना कर ले जिस हाइट से उसको रिलीज किया गया था। इन शॉर्ट, मार्बल जो है वो अपनी वही कंडीशन या वही स्टेट अचीव करने की कोशिश कर रहा है जिस स्टेट से उसको रिलीज किया गया था। सो मार्बल अपनी वही स्टेट अचीव करने की कोशिश करता है जिस स्टेट से उसको रिलीज किया, जिस स्टेट में वो आपका रोल डाउन होने से पहले था। तो यहीं से आपका जो है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन हम डिफाइन करेंगे। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन,
first law of motion, it states that an object remains in the state of rest or of uniform motion in a straight line unless it is acted upon by an external unbalanced फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि आपका कोई भी ऑब्जेक्ट अगर स्टेट में है, अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नली कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट ना करे। जैसे हमने पहले भी देखा, प्रीवियस एग्जांपल्स जो आपने अनबैलेंस और बैलेंस फोर्सेस वाले टॉपिक में देखे, कि जो बैलेंस फोर्सेस अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं, दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट में, चाहे वो रेस्ट की स्टेट है या मोशन की स्टेट है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज डिनाई करता है जब तक उस पर कोई अनबैलेंस फोर्स एक्ट नहीं करता। इस लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज ऑल्सो नोन एज law of inertia. Now the question arises, what is inertia? Inertia, it is a tendency of an object to resist any change in the state of rest or motion। देखिए inertia क्या है? It is the tendency of an object to resist any change in the state of rest or motion। किसी भी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी रेस्ट की स्टेट में या मोशन की स्टेट में किसी भी तरह के बदलाव को रेजिस्ट करता है, इस टेंडेंसी को हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया इज ऑफ टू टाइप्स, inertia of rest and inertia of motion। inertia of rest क्या होगा? कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपका मूव कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है, मोशन में है, हम कहेंगे कि उसका इनर्शिया जो आपका मोशन में है। सो ये आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। नाउ देयर आर सर्टेन एग्जांपल्स which can be explained, there are certain phenomena which can be explained by the use of first law of motion। देखिए कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। पहला एग्जांपल है आपका, we fall backwards when a bus सडनली स्टार्ट्स। देखिए अगर हम किसी बस में बैठे हैं जो कि रेस्ट पे है, जैसे ही वो बस आपका स्टार्ट होती है तो हम देखते हैं कि हम एक पीछे की तरफ, हमें एक जर्क लगता है, हम पीछे की तरफ एक झटका लेते हैं और हम पीछे की तरफ गिरते हैं। रीजन बीइंग, इनिशियली बस जो है वो आपका रेस्ट पे है और आप भी बस में बैठे हैं, तो आपकी भी पूरी बॉडी जो है वो आपका रेस्ट पे है। योर लेग्स बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। जैसे ही बस आपका मोशन में आ जाती है, तो बस के मोशन में आते ही आपके जो लोअर लेग्स होते हैं विच आर इन इमीडिएट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, वो आपके मोशन में आ जाते हैं। लेकिन आपकी जो अपर बॉडी है, दैट इज द बॉडी अबव योर एब्डोमेन, वो आपका तब भी उसके अपने इनर्शिया की वजह से आपका रेस्ट पे ही रहती है, जिस वजह से आप जो पैसेंजर है वो बस स्टार्ट होती है आपका पीछे की तरफ गिरते हैं। ऐसी और एग्जांपल्स में आता है आपका, जैसे बस आपका मोशन में होती है, फॉल फॉरवर्ड्स
when a bus suddenly stops. जैसे ही आपका चलती हुई बस जैसे रुकती है तो हम देखते हैं हम आपका आगे की तरफ गिरते हैं. अगेन, जब आपका बस मोशन में है, हमारी बॉडी भी मोशन में है, तो हम बस का इनर्शिया और हमारी बॉडी का जो इनर्शिया है वो आपका मोशन में है. जैसे ही बस आपका रुकती है, बस रुकते ही हमारी जो लोअर बॉडी है, बिकॉज आवर लेग्स बीइंग इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, दैट इज द बॉडी बिलो एब्डोमेन, वो आपका रेस्ट पे आ जाती है बस के साथ ही. लेकिन हमारी जो अपर बॉडी है वो तब भी आपका मोशन में रहती है, जिस वजह से आपका हमारी बॉडी जो है वो आपका आगे की तरफ गिरती है. तो ये आपका बोथ ऑफ दीज फिनोमेनास, फॉलिंग बैकवर्ड्स एंड फॉलिंग फॉरवर्ड, वी कैन एक्सप्लेन देम बाय फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. कार्स में हमारे सेफ्टी बेल्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं. सेफ्टी बेल्ट्स भी आपका इसी रीजन से प्रोवाइड किए जाते हैं. जब आपका कार मोशन में है और सडनली अगर ब्रेक्स लगाने पड़ जाते हैं, तो ब्रेक्स लगाने की वजह से हमारी जो बॉडी है वो आपका आगे की तरफ आपका जाती है. अगर आपका सेफ्टी बेल्ट नहीं होंगे, नहीं होने की वजह से आपका कई बार आपका काफ़ी ज़्यादा चोट लगने का खतरा होता है. तो सेफ्टी बेल्ट जो है वो आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, और जो हमारा फॉरवर्ड मोशन है हमारे इनर्शिया की वजह से, जैसे आपका कार में ब्रेक सप्लाई होंगे और इनर्शिया की वजह से हमारी बॉडी जो फॉरवर्ड मूव करेगी, उस फॉरवर्ड मोशन को जो सेफ्टी बेल्ट्स हैं वो आपका स्लो कर देते हैं, जिस वजह से आपका इंजरीज का जो खतरा है वो आपका कम हो जाता है. सो ये जो आपका फिनोमेनास हैं, ये जो आपके इंसिडेंट्स हैं, इन सब को हम आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से एक्सप्लेन कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, ये आपके इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो थी. एंड द सेकंड वीडियो we will look for the relation between inertia and mass and the second law of motion. Thank you.